एपेक्स न्यूज इंडिया नॉर्थ ईस्ट। नमस्कार, मैं दीपिका दे आप सभी का स्वागत करती हूं और आप देख रहे हैं मेरे साथ एपेक्स न्यूज इंडिया। चलिए पहले एक नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस पर। अब खबरें आगे। मेघालय हाईकोर्ट ने शिलांग में हुई हिंसा और तोड़फोड़ पर सुमोटो कॉग्निसेंस लिया है। कोर्ट ने आरोपियों को जल्द पकड़ने के लिए पुलिस को कार्रवाई तेज करने के निर्देश दिए हैं और 24 अगस्त तक डिटेल्ड एक्शन रिपोर्ट मांगी है। मेघालय और असम सरकार ने इंटरस्टेट मूवमेंट को नॉर्मल करने के लिए एक कैबिनेट मिनिस्टर को कोऑर्डिनेशन की जिम्मेदारी दी है। मेघालय से डिप्यूटी सीएम स्न्योभा लंगधर और असम से अतुल बोरा इस मुद्दे पर लगातार संपर्क में रहेंगे। Of late, our Honorable Chief Minister and Chief Minister of Assam too, both of them, they are in touch. They are very soon, I think, they'll take some kind of maybe decision to have some joint committee or something, and that both the Chief Minister will maybe very soon announce for the, again, as I said to you, to restore back the normalcy and also the safety of both the state. Well, yes, today right from morning time, I think we have problem in the national highway of Shillong Guwahati, where some problem happened in Jorabat, again some problem happened in Khanapara side. Then we have instructed the district administration from Riboy district as well as Chief Secretary and DGP. They were all in touch with the government of Assam, Chief Secretary of Assam, DGP of Assam, and ultimately again this problem is just resolved this evening itself, where the Chief Secretary and DG of both the states has resolved it amicably, and I would also like to appeal to each and everyone that this moment, as I speak, I think the traffic movement is smooth in both sides of the state. मेघालय सरकार ने शुक्रवार को केएसयू के प्रपोज्ड प्रोसेशन और सिट इन प्रोटेस्ट को परमिशन देने से इनकार कर दिया है। सेक्शन 162 बीएनएसएस के तहत बिना परमिशन रैली, प्रोसेशन और पब्लिक गैदरिंग पर रोक लगा दी गई है। A series of vandalism, arson and assault cases were reported yesterday. Any such permission, the permission which has been given for their sit-in protest for tomorrow, we will be revoking the same. So why has the administration not issued any helpline number for those, because those who were assaulted were poorest of the poor from what we've witnessed on the ground? Why is that the administration has not issued a helpline number where they can seek help and a sort of assistance that they can look for? But from what I understand, all these 16 people have reported to civil hospital, isn't it, Shan? Yes, sir. And they have been given the new medical care. Simultaneously, we have asked our sector magistrate to be in touch with civil hospital in case they require further medical care, let's say something that will require tertiary care. In that case, any possible help that can be given to them will be rendered by the government of Meghalaya. Simultaneously, just a second, please let me complete. Simultaneously, the government of Meghalaya is also, as I understand, is going to issue helpline numbers for the tourists. From the tourist, basically, the tourism department is going to issue helpline numbers for the tourists who feel stranded, who want to seek certain help. So anyone basically who was assaulted yesterday, we did provide them medical care, and we are committed to ensure that they do get the requisite medical care wherever required. According to that, is there any coordination? शिलांग गुवाहाटी के बीच मेघालय के कमर्शियल टैक्सी सर्विसेज को फिलहाल सस्पेंड कर दिया गया है। टैक्सी एसोसिएशंस ने ड्राइवर्स और पैसेंजर्स की सिक्योरिटी की मांग की है और हालत ना सुधारने पर और कदम उठाने की चेतावनी दी है।
मेघालय सीएम कॉनराड संगमा ने असम सीएम हिमंत बिश्व शर्मा से बात की है। दोनों राज्यों के सरकारों ने मिलकर पीस, ट्रस्ट और नॉर्मलसी बहाल करने पर सहमति जताई है। शिलोंग के नोंगमिनसन एरिया में रात करीब 10 बजे पुलिस बिट हाउस पर पेट्रोल बम फेंका गया। पेट्रोल बम वारंदा में गिरा, लेकिन कोई नुकसान या इंजरी नहीं हुई। पुलिस की जांच जारी है। This chair, they throw from this side, I think. यहाँ रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। मिलेंगे कुछ और खबरों के साथ ब्रेक के बाद। देखते रहिए एपेक्स न्यूज इंडिया। You think champions are made in the arena? They rise from the streets. The streets remember champions. Welcome to Greenhaven, Shillong. Hidden among Meghalaya's misty hills, Greenhaven, Shillong invites you to slow down and reconnect. Indulge in luxurious comfort, stunning views, heartfelt hospitality, and the serenity of nature. Discover a stay that's more than a getaway. It's an experience, where every stay feels like coming home. ब्रेक के बाद फिर से स्वागत है आप सभी का। चलिए देखते हैं बाकी की खबरें। मेघालय सरकार ने केएसयू रैली के दौरान पब्लिक और प्राइवेट प्रॉपर्टी को नुकसान पहुंचाने वाले मिसक्रिएंट्स के खिलाफ मेघालय मेंटेनेंस ऑफ पब्लिक ऑर्डर एक्ट लागू किया है। सीसीटीवी और ड्रोन्स की मदद से आरोपियों की पहचान की जा रही है। Let me just tell you one thing now. Again, what happened is this incident that has happened yesterday. Even can't you imagine? It's very hurting. Even the vehicle of the Honorable High Court were attacked, and that also it happened inside the compound. It is not that the vehicle is parked outside the compound, well inside the compound, and these criminals went and attacked, damaged these vehicles. So in the PIL, now we are being asked by the Honorable High Court, affidavit has to be filed, and I would like to inform you that government has already invoked the Meghalaya maintenance of people of public order immediately, and again accordingly action will be taken about those culprits, about those criminals who damage the properties, be it of the government or be it of the private. Sir, do you agree that शिलोंग में हिंसा के बाद सेंटर ने मेघालय में 5 कंपनीज ऑफ सेंट्रल फोर्सेस के डिप्लॉयमेंट को मंजूरी दे दी है। इनमें सीआरपीएफ के 4 और आरएएफ के 1 कंपनी शामिल है, जो 25 अगस्त तक लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करने में मेघालय पुलिस की मदद करेगी। इस वक्त मैं खड़ा हूँ शिलोंग के पुलिस बाज़ार के मेन पॉइंट में, जो खंडाईलाट कहा जाता है। और जैसे कि आप लोगों को पता है कि जो केएसयू का रैली हुआ था 19 तारीख को, तो उसमें वो पीसफुल रैली था, लेकिन कुछ अप्रिय घटना वहाँ पर घट गई थी। इसके लिए जो आज जो 11 बजे जो सिटिंग प्रोटेस्ट होना था, उसकी अनुमति नहीं दी गई है। तो वो सिटिंग प्रोटेस्ट ना हो, इसके लिए
यहाँ पर देखिए सेंट्रल से 5 कंपनियों को तैनात किया गया है और हमारे पीछे जैसे कि आप देख रहे हैं कि RAF के जवान यहाँ पर खड़े हैं और इसलिए खड़े हैं कि मतलब यहाँ के जो शांति व्यवस्था बनी रहे इसीलिए। और हमारे पीछे भी आपको दिखा देते हैं कि यहाँ के जो प्रशासन है वो भी अपने सिक्योरिटी का पूरा इंतज़ाम किया गया है यहाँ पर। और यहाँ पर रोज़मर्रा जैसे कि यहाँ पर गाड़ियाँ होती थी, यहाँ पर लोकल टैक्सी हुआ करते थे और बहुत भीड़ भाड़ होता है क्योंकि ये शिलांग का मुख्य जो स्थान है पुलिस बाज़ार वो है। और आज के सिचुएशन के वजह से लोगों के मन में डर है और जो 19 तारीख की जो अप्रिय घटना हुई थी उसके वजह से लोगों का मन में डर है, वो शायद नहीं आज घरों से नहीं निकल रहे हैं ताकि यहाँ पर कुछ प्रॉब्लम ना हो। लेकिन प्रशासन पूरी तरह से यहाँ पर टाइट है और हम अभी करीबन 2 या 2:30 बज रहे हैं, 11 बजे का टाइम था, अभी 11 बजे कुछ यहाँ पर वैसे कुछ स्थिति नहीं दिखाई दे रही है। और आगे क्या होगा हम आपको इससे दिखाते रहेंगे और आगे भी मतलब अलग अलग क्षेत्रों में भी हम जाएंगे और दिखाएंगे कि वहाँ की सिचुएशन कैसी है। मैं प्रकाश वर्मा, एपेक्स न्यूज़ इंडिया, शिलांग विद कैमरा पर्सन निहारिका चौधरी। ईस्ट खासी हिल्स में सिक्योरिटी और टाइट कर दी गई है। की लोकेशंस पर पुलिस और सिक्योरिटी पर्सनल के डिप्लॉयमेंट के साथ पेट्रोलिंग और सर्विलेंस बढ़ा दी गई है। लोगों से शांति बनाए रखने और सिक्योरिटी फोर्सेस का सहयोग करने की अपील की गई है। यूनियन होम मिनिस्टर अमित शाह ने वंदे मातरम के मुद्दे पर कांग्रेस पर निशाना साधा है। शाह ने आरोप लगाया कि 1937 में वंदे मातरम को बांटने की कांग्रेस की नीति ने पार्टीशन की नींव रखी। उन्होंने कहा कि अपीसमेंट पॉलिटिक्स अब नहीं चलेगी। आश्चर्यजनक और देश विरोधी फैसला लिया है। उन्होंने अपनी पार्टी के 37 के रिजोल्यूशन को फॉलो करते हुए महान वंदे मातरम गीत के 2 ही छंद गाने का फैसला किया है। मैं इस समय पर पूरे देश को याद कराना चाहता हूं कि 1937 में कांग्रेस पार्टी ने मुस्लिम अपीसमेंट के लिए वंदे मातरम के 2 टुकड़े कर देश के विभाजन की नींव डाली थी और वहीं से 2 राष्ट्र के सिद्धांत को ताकत मिली थी और अंततोगत्वा देश का विभाजन हुआ और पाकिस्तान का जन्म हुआ था। आज जब वो ऐतिहासिक गलती को
वंदे मातरम के गीत के प्रागट्य के 150वें साल में नरेंद्र मोदी सरकार ने सुधार कर बंकिम बाबू की ये अमर कृति को पूरा गीत गाकर राष्ट्रीय एकात्मता को फिर से एक बार सुदृढ़ करने का प्रयास किया है और सभी सरकारी फंक्शंस में इसको पूर्ण रूपेण गाने का जो निर्णय किया है वो निर्णय को कानूनी जामा भी पहनाया है। इसकी अवहेलना करने का कांग्रेस ने कल निर्णय किया है। कांग्रेस का ये निर्णय केवल और केवल इनकी घोर तुष्टीकरण की नीति की पुष्टि करता है। वोट बैंक के तुष्टीकरण के लिए उन्होंने स्वर्गीय बंकिम बाबू के इस अमर कृति का न केवल अपमान किया है, वो लाखों शहीदों का भी अपमान किया है जो वंदे मातरम का नारा लगाते लगाते देश की आजादी के लिए फांसी पर चढ़ गए, जिन्होंने कई साल जेल में काटे। आज कांग्रेस पार्टी 1937 का अपनी पार्टी का रिजोल्यूशन मान रही है और पार्लियामेंट के एक्ट को नकार रही है। मुझे तो बड़ा आश्चर्य है, श्री राहुल गांधी की नेतृत्व में कांग्रेस पार्टी फिर एक बार इस देश में तुष्टीकरण की राजनीति को पुरजोश तरीके से आगे बढ़ा रही है। मैं देश की जनता को अपील करना चाहता हूं कि एक बार इस देश ने गलती करी थी। खबरों में आज के लिए इतना ही। ऐसे और खबरों के साथ जुड़े रहने के लिए देखते रहिए एपेक्स न्यूज इंडिया। धन्यवाद। Apex News India Northeast।